I had got some series of doubts, okay, which I have just made into PowerPoint, okay. कुछ डाउट्स तो बहुत ही एकदम अजीब से थे तो वो मैंने कंसिडर नहीं किए हैं बिकॉज कुछ सब तो बहुत ज्यादा ही इजी थे और ऐसे डाउट्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए, ओके. तो ठीक है किड्स, आई थिंक शुरू करते हैं डाउट सॉल्विंग. ओके, तो एक डाउट था आपका, वो है ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है. ये भी आई थिंक मैनेजेबल ही था क्योंकि इफ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, दिस गाय एंड दिस गाय, तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों का कनेक्शन पता चल जाएगा. सिमिलरली इनके बीच में और इनके बीच में भी कनेक्शन है. इट मीन दिस इज ऑफ कोर्स किस 1 प्लस ऑफ cos pi by 10. This is 1 plus cos of 3 pi by 10. Okay kids, can I write cos 7 pi by 10 as pi minus 3 pi by 10? Do you agree kids? Yes sir. Similarly, आपका जो 9 pi by 10 है, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं पता है? pi minus pi by 10. Is it okay? Yes sir. Okay, good. Okay, now this is 1 plus cos of pi by 10. This is 1 plus cos of 3 pi by 10. Hey, what is cos of pi minus theta? cos theta. cos theta Cos theta. minus 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 cos theta. It is minus of cos theta. Yeah. तो यहां पर भी आ जाएगा minus of cos theta. अब तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है. You can just check it out. 1 plus cos 1 minus cos become 1 minus of cos square pi by 10. 1 plus cos 1 minus cos becomes 1 minus cos square of 3 pi by 10. 1 minus cos square becomes sine square of pi by 10 and this is sine square of 3 pi by 10. चलेगा kids? 1 minus Yes, cos theta sir. sin square theta. I think सबको पता है pi by 10 क्या होता है. pi by 10 मतलब 18 डिग्री होता है and 3 pi by 10 का मतलब होता है 54 डिग्री. किसी को याद है sin 18 का वैल्यू? -1 plus pi root minus 4 1 upon 4. upon 4. So it's root 5 minus 1 by 4. Is it okay kids? 4. Yes sir. और ये कितना है? 1 plus root 5 upon 4. Root 5 plus 1 by 4. Yeah, good. Okay. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? Of course इसको हमने स्क्वायर ही किया है तो ये आपका हो जाएगा of course नीचे आ गया of course ये आपका 16 है. ओके ओके, हम इसको पूरा होल स्क्वायर पहले कर देते फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ओके तो ये आपका पूरा होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएगा 4. ऑफ कोर्स ये भी आपका 4 है. ऑफ कोर्स दिस इज रूट 5 minus 1, दिस इज रूट 5 plus 1. ओके नाउ लेट्स रैप इट अप. एक मिनट, या 1 minute. ओके सो यहाँ पर आ गया क्या किड्स? यहाँ पर क्या आ जाएगा? a minus b, a plus b becomes 5 minus 1, that becomes 4. 4 into 4. Of course, 4 cancels and you get the answer as 1 by 16. Is it okay, kids? Yes sir. Yes sir. तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है 1 by 16 is your answer. Okay, so ये easy problem था, manageable था. चलो ठीक है. 19 में भी डाउट था तो भी बता देते हैं किड्स. पहले कुछ कॉमन आएगा कि दोनों में से? क्या कॉमन आएगा? Cos alpha plus alpha plus beta. Of course, cos of alpha plus beta, I'll take it common. So I'm left inside with cos of alpha plus beta minus 2 cos alpha cos of beta. Okay. This is cos square alpha plus cos of alpha plus beta. Okay, kids, I think everybody should know what is 2 cos A cos B. What is 2 cos A cos B? What is 2 cos A cos B? Tell me. What is 2 cos A cos B? अरे defactorization formula याद है किसी को? 2 cos A cos B.
cos plus cos. cos a plus b plus cos a minus b. cos of a minus b, है ना, defactorization. Okay. Of course, cos of alpha plus beta, I'll open the bracket, so I get cos of alpha plus beta minus cos of alpha plus beta minus of cos of alpha minus beta. Now it's but obvious, I can cancel the term. Okay, so I get cos square of alpha. Now this is cos and this is also cos. Okay, so of course this plus into minus will become minus. I get cos of 1 minute. Yeah. I get cos of alpha 1 minute. Yeah. Plus beta, and of course this is cos of alpha minus beta. Does anybody remember some result? Does anybody remember some result? किसी को याद है? ऐसा कोई नहीं है जिसको याद है? अगर आपको याद नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रिगो कर रहे हो, square a minus sin square beta. हाँ, आपको ये फॉर्मूला मैंने दिया था, cos of a plus b into cos of a minus, डायरेक्ट शॉर्टकट है, इट इज cos square a minus sin square b, है ना किड्स? Yes sir. तो आपको याद होना चाहिए. इफ यू डोंट रिमेंबर देन अच्छा नहीं है. ओके, cos square alpha minus sin square beta, is it okay kids? Yes sir. Cos square alpha minus of cos square alpha plus sin square of beta, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ से जो मिला वो है sin square of beta, and that becomes your RHS. Did you understand? Yes sir. ओके, तो ये पावर पॉइंट में शेयर कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद. तो आप फिर वो सोल्यूशन अपने बुक में लिख लेना, ठीक है ना? हो गया? कैन आई? Yes sir. उसके बाद 20 सेकंड में किसी ने डाउट पूछा था. ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब आ जाए लोगों को. ओके, फिर भी चलो करके बता देते हैं. a प्लस बी आपका 45 डिग्री है, तो अगर हम tan अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो on the right side I'll get tan 45, and tan 45 will be 1. Now of course I can apply tan of a plus b का formula, it's pretty obvious for me. Okay, 1 minute. Okay, I can say it is a thing, but tan a plus tan b upon 1 minus of tan a tan b, जो कि यहाँ पर आ जाता है 1. डिनोमिनेटर को शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो आपको क्या मिलेगा? tan of a प्लस tan of b, और यहाँ पर आएगा 1 minus of tan a tan b. And let me shift on the left hand side, so I get tan a plus tan b plus tan a tan b. ऐसे हमने बहुत बार किया है, but now let's be more smart. You look at the question now. In the question, if you just see right side, there is a 2. Okay, so I need to have 2 here. So I'll do one thing. I'll add 1 on both sides. So I'm adding 1 on both sides. Now what is the benefit of that? That we'll see now. Now this is 1 plus tan A. I'm using the bracket and 1. Okay. From these two guys, I'll take tan B common. So I get 1 plus of tan A. I've taken tan B common. And 1 plus 1 will become 2. Okay. I can take it common, obviously. So I get 1 plus tan A. And of course, here I'll get 1 plus tan B. And that's how it is proved. Is it okay, kids? Yes sir. Yes sir. है ना? तो ये देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया हमारा ये. ओके, देखो ट्रिगो क्या पता है, मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, आपको शॉक हो जाएगा. ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रिगो के क्वेश्चंस कम आते हैं बहुत.
लेकिन ट्रिगो का जो एप्लीकेशन है वो सब जगह पर है, एवरीवेयर देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो ट्रिगो आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो को यूज करेंगे हम हर चैप्टर पे, इसके लिए हमें ट्रिगो आना चाहिए, ये जरूरी है। मैनिपुलेशन, टू लर्न द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एडजस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर्मूलाज याद रखना तो बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक है। आगे के ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया, लेकिन अभी सवाल है कि हेंस डिड्यूस। देखो ऑफ कोर्स ये सब क्वेश्चन जेई में तो नहीं आते, बट आपको इस सब तरीका टेक्निक्स पता होने चाहिए। हेंस डिड्यूस का मतलब होता है आपको इसकी मदद लेके ये प्रूव करना है, इस फॉर्मूले की मदद लेके। तो देखो मैं कैसे करने वाला हूं किड्स। सबसे पहले लेट मी से लाइक लेट्स सपोज किड्स a plus b is how much kids? What is a plus b? 45. 45, right kids? तो एक काम करता हूं मैं, let's assume a and b both are equal. If let us assume a and b both are equal, so if a and b both are equal, तो कैसे they'll be each equal to 22.5 degree, Yes, sir. है ना। मैंने assume किया a and b are both equal, so they will automatically be equal to 22.5 each. ओके तो यहां पर फिलहाल ये दोनों इक्वल है, तो मैं एक काम कर लेता हूं। ओके ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर, ओके दिस इज सपोज 1 प्लस tan a, और दोनों मैंने इक्वल अज्यूम किया है, तो ये भी हो गया 1 प्लस tan a इक्वल टू 2। तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a, तो ऑटोमेटिकली मुझे मिलेगा 1 प्लस tan a द होल स्क्वायर। इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो मैंने t लिख दिया बाय द वे मेरे कन्वीनियंस के लिए। ओके और a तो आपको पता भी दोनों इक्वल ही है बाय द वे, ठीक है। या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पर आएगा 1 प्लस 2t प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 2, सो आई गेट t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। आई कैन अप्लाई श्रीधराचार्य, यहां पर आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a मतलब 2। ओके सो आई गेट हियर, चेक कर लो क्या ये 8 हो जाएगा। तो मुझे t मिलेगा यहां से -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 अपॉन 2। आप चेक कर लो अगर आपको डाउट है तो, या 8 हो जाएगा। ए व्हाट इज रूट ऑफ 8 किड्स? 2 रूट 2, इज इट ओके? Yes, sir. 2 gets cancelled, I get -1 plus minus of root 2. Remember t is tan of a या tan of b, जिसको बोलना है बोल दो। लेकिन आपका a यहाँ पर कितना है 22.5 है ना किड्स? Yes, sir. तो अगर 22.5 है a आपका, तो मुझे यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए कि माइनस लिखना चाहिए? Plus क्यों प्लस लिखना चाहिए? first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू ही चलेगा, तो अगर आप माइनस लोगे तो ये भी माइनस में, तो वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, जिससे रूट 2 इज ग्रेटर, इट इज 1.41 -1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा यहां से। ओके और ये जो है आपका नेगेटिव लेते तो नेगेटिव हो जाता, बट इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके सो दिस इज योर आंसर, एंड ऑफ कोर्स व्हिच इज सेम एज रूट ऑफ 2 -1। ओके यू कैन चेक इट आउट, वो हेंस रिड्यूस वही पार्ट था उनका। ओके so again it was a nice problem, okay, which we did it. Understood kids? ये वाला प्रॉब्लम सब लोग को समझा? Yes, ये sir. एडजस्टमेंट वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये वाला एडजस्टमेंट वाला पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव मूव मूव। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। tan a and tan b are the roots of the quadratic equation. तो आई थिंक ये इसके रूट्स है, तो आई विल फाइंड सम ऑफ द रूट्स and I will also find the product of the roots. Now, sum of the roots is given as minus b by a, that is a, and the product is given as c by a, that is b. Is it okay kids? Sum and Yes, product of sir. the roots, okay? चलो ठीक है। अब सवाल है कि हमें बोला है कि इसका वैल्यू क्या है, तो मैंने एक छोटा सा मैं काम करता हूं, वो ये है, एक मिनट,
There's some people now, I think they're coming now. Yeah, I started on time only, na kids? So we had Sachin sir's lecture before this. Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. One minute, huh? ओके तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना जो लोग लेट आए, ठीक है, जो मिस किया आपने. यस सर. चलो ठीक है. चलो. Okay, so now it is, I am supposed to find the value of sine square of a plus b. सवाल है ये करेंगे कैसे? किस आप एग्री करोगे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, do you agree kids if I write a note somewhere here, do you agree kids that sin theta actually can be written as tan theta upon sec theta? What do you think? Is that true? Yes, sir. पक्का ना? यस सर. कि tan theta क्या होता है sin by cos और sec theta क्या होता है 1 upon cos. Upon cos आपका cancel हो जाता है. Is it okay kids? यस सर. Sin square a plus b can be written as what? Tan square of a plus b upon sec square of a plus b. Is it okay kids? Yes, sir. Okay. Next. अब बोले सर आप tan में क्यों कर रहे हो? Okay. Next मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ. Next. नीचे जो denominator है sec square theta है. Can I write sec square theta as 1 plus tan square theta? क्या लगता है चलेगा ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब आई थिंक ये तो सब लोग कर सकते हैं अभी. tan of a plus b का फॉर्मूला सबको पता है. tan a plus b का फॉर्मूला क्या है? tan of a plus tan of b upon 1 minus of tan a tan b. Is it okay? ये चलेगा kids? Yes, sir. तो ऊपर आ गया a and नीचे it is 1 minus of b. So I've got here tan of a plus b का मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गया है. Okay, now let's happily put it inside. तो ये आपका a upon 1 minus b the whole square और ये आपका 1 plus a upon 1 minus b the whole square. Did you understand kids? Yes, sir. That's it. I think ये तो अभी हो गया है. a square upon 1 minus b the whole square 1 plus यहाँ पर आ जाएगा a square upon 1 minus b the whole square. Of course हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई जब करेंगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला है वो है a square नीचे आएगा 1 minus b the whole square plus a square and this becomes your final answer and you can check it out. What is the answer? है ना, वो अपॉन करके कैंसिल हो जाएगा ये. So option A is your answer. Is it okay kids? Yes, sir. ओके चलो अच्छी बात. देखो कुछ एक अच्छी चीज हमने सीख ली कि हमें पता है वी नो दिस बट स्टिल वो यूज करने का कब यूज करने का ना वो प्रॉब्लम है. सो यू हैव टू लर्न द आर्ट. कोई भी छोटी छोटी चीज आप नहीं सीखते हो उसको सेल्फ नोट्स में एंट्री करो. अपना एक छोटा बुक बना के रखो या बड़ा बुक बना के रखो. हर रोज की कुछ नई चीजें जो आप सीखते हो उसको नोट डाउन करो बुक में. चलो अच्छी बात है. Okay, so we have kids 26th problem in front of us और यहां पर पूछा गया है if tan of a is negative, then what are the possible options? Okay, if tan of a is negative then what are the possible options? You know what, जब मैं ये सपोज मैं पहली बार देखता हूं ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है कि अगर tan a नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली मेरा एंगल a जो है
वो ऑब्ट्यूस है. डू यू एग्री? Yes, sir. और अगर एंगल ए ऑब्ट्यूस है और ट्राइंगल है वो, अगर एंगल ए 90 से ज्यादा है तो इट इज बट ऑब्वियस मेरा ए एंड बी हैज टू बी व्हाट? So A and B B. and C. Sorry. Yeah, not A and B, B and C. My B and C has to be what, kids? Acute. Acute. Has to be acute. तो इतना तो मुझे पता चल ही जाता है by reading this data. अब सवाल है कि how to get the options and all. तो मैं एक काम करता हूँ, kids. Of course, I think you all will agree with me that A plus B plus C, A plus B plus C is equal to pi, क्योंकि बेसिकली एक ट्राइंगल है तो मैं A को लिख सकता हूँ यहाँ पर pi minus of B plus C. Is it okay, kids? Yes, sir. Now, kids, you all think what data is given to us? They are telling us that tan of A is negative. तो अगर मैं A के बदले in place of A I can write pi minus of B plus C. Now what is tan of pi minus theta? Minus tan theta. Minus tan pi minus theta is minus of tan theta. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay, very nice. So automatically I can say tan of B plus C should become positive, है ना? Inequality will change if I multiply by minus sign, है ना, kids? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I can apply the formula of tan of B plus C, tan B plus tan C upon 1 minus of tan of B and tan of C greater than 0. What do you say? Is it okay, kids? Yes, sir. चलो अभी थोड़ा सोच विचार करते हैं. किड्स, बी एंड सी आपका अक्यूट है, तो अगर बी अक्यूट है तो कैसे tan बी पॉजिटिव है? Yes, sir. Yes. आपका tan सी भी पॉजिटिव है, क्या लगता है? डू यू एग्री? Yes, sir. और अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? Positive. वापस बता रहा हूं मैं, किस द एंटायर टर्म इज पॉजिटिव एंड सिंस बी एंड सी आर अक्यूट एंगल, सो tan B will be positive and tan C will be positive. So आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है और अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तब जाके पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. I get 1 minus of tan of B, tan of C greater than 0. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. So 1 is greater than tan B tan C. So finally I get tan of B, tan of C less than 1. और आप चेक कर लो, आपका ऑप्शन आपको दिख रहा है. What is the answer finally? B. B is answer. Okay, so such a beautiful problem. आपका tan B A नेगेटिव है तो A आपको ऑब्ट्यूस होगा, तो B and C अक्यूट होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल है. तो एक अगर 90 से ज्यादा है तो बचा खुचा दो तो फिर कम ही होने वाला है ना. और tan A नेगेटिव है, A को मैंने लिखा एंड देन सिंप्लीफाइंग इट एंड गेटिंग द कंक्लूजन आउट ऑफ इट. ठीक है, सो दिस वाज आल्सो द डाउट व्हिच वी हैव सीन. लेट्स मूव अहेड. ओके, दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. मतलब ये मुझे बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम लगा और जो पता नहीं किसी डाउट पूछा लेकिन अच्छा डाउट है ये दिस इज अ नाइस डाउट. देखो कभी कभी डाउट्स भी अच्छे होते हैं. अब कोई कोई डाउट तो बहुत ही बकवास होते हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बच्चे कर लें. ओके, तो कुछ कुछ बच्चे कुछ बहुत ही सिंपल डाउट्स पूछते हैं तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इतना इजी क्यों डाउट पूछ रहा है वो. थोड़ा भी हाथ पैर मारेंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब भी घर पे कुछ होमवर्क करो ना, मे बी इट माइट हैपन पहले शॉट में आंसर ना आए, दैट्स ओके. बाद में एक बार ट्राई कर लेना, 2-3 बार ट्राई करके नहीं आया तो फिर समझ जाओ कि शायद आप मुझे दे देना. लेकिन उसके पहले भी ऐसे भी हो सकते कि आपने क्लास वर्क ठीक से नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, तो पहले अपना खुद का होमवर्क कर लो. खुद का होमवर्क मतलब क्या? खुद की पढ़ाई करो, चैप्टर ठीक से पढ़ो, समझो, फिर होमवर्क ट्राई करेंगे तो इट विल मेक सेंस. अदरवाइज एवरीथिंग विल बी अ डाउट ओनली इफ यू डोंट प्रिपेयर. ओके,
So homework makes sense only when you have understood what is taught to you and you have gone through the things which is taught by the sir. Otherwise, you doing homework is of no use then. Okay, chalo. Okay, kids. So can I start? Yes, sir. Okay, kids. ये cot है, तो मैं इसको tan में convert कर सकता हूँ. Do you agree? Yes, sir. तो मैंने उसको tan में convert कर रहा हूँ. ये सब वैसे के वैसे ही रख रहा हूँ, उनको मैं कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा. ठीक है. ओके, मैं LHS लिया है मैंने. अगेन प्रूव दैट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दिया होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, समझा? तो फिर भी सब सीखना है. सो डोंट आस्क मी से प्रूव दैट क्वेश्चन है. अरे तो हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, वो सब सीख रहे हैं. सो डोंट वरी अबाउट वेदर देयर आर ऑप्शंस और नो ऑप्शंस. रादर लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम विदाउट ऑप्शंस. क्योंकि ऑप्शंस आएंगे, कभी के बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं. वो मैं नहीं चाहता अभी दैट यू लर्न द आर्ट ऑफ अभी से ऑप्शन एलिमिनेट करना. ऑप्शन तो एलिमिनेट करना सीख ही जाओगे ऑटोमेटिकली. तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ओके, चलो. तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर -1 अपॉन tan स्क्वायर +1 प्लस cos ऑफ अल्फा बाई 2. दिस इज cot ऑफ 4 अल्फा into sec of 9 alpha by 2. Okay, kids, I can take minus common. I get minus of 1 minus of tan square of alpha minus pi by 4. This is 1 plus of tan square of alpha minus pi upon 4. ठीक है. And of course यहां पर मैं लिखूंगा plus cos of alpha by 2 cot of 4 alpha. This is sec of 9 alpha by 2. इसको देख के किसी को कुछ क्लिक हो रहा है क्या? Cos 2 theta. Cos 2 theta. Cos 2 theta. So good, so nice, so good. It is cos of twice the angle. Do you agree? Twice the angle. Yes, sir. Cos Yes, of 2 theta ना. Yes, sir. 1 minus tan square upon 1 plus tan is cos of 2 theta. तो multiply by 2 जब करेंगे तो I'll get alpha minus pi upon 2. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Good, very nice. This is cos of alpha by 2. This is cot of 4 alpha. And this is kids sec of 9 alpha upon 2. Cool. आगे बढ़ते हैं. Okay, now kids, I can discuss cos of, okay, minus pi by 2. Okay, I'll take minus common, minus alpha by 2. Hey, what did I do here, kids? क्या किया मैंने? How I wrote this? I split it to and I took minus common. Understood? I took minus common, kids. Yes, Yes, sir. sir. Cot of 4 alpha into sec of 9 alpha by 2. चलो अब मुझे कोई बताएगा इसके बारे में before I go ahead. Kids, what is a cos of minus theta? Cos theta. Cos theta. Smart, very good. Cos of minus theta is cos theta only. Okay, तो ठीक है. ये वाला माइनस कहाँ से So, है? but it is pi by 2. हाँ, वो बाद में करेंगे, उसका अपन बाद में करेंगे. रुको, ये माइनस 2 बार लिखा मैंने ना किड्स. ओके, ये माइनस यहाँ पर लिखा है मैंने. This minus is, oh sorry, yeah. Okay, yeah, so this minus I've written here, and from these two guys I've taken minus common. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान से देखना, पाई बाय 2 का चिंता मत कर, उसको सॉल्व करेंगे. तो पहले इस माइनस की बात करते हैं. So this is like your theta. So what is cos of minus theta? It will be Cos theta. cos of theta. Is it okay, audience? Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो इस सम ने एक्चुअली में फटाफट भी कर सकता था, लेकिन सबको समझना चाहिए ना, इसके लिए मैं स्लोली कर रहा हूँ. ओके, व्हाट इज cos 90 minus theta? Sin theta. Sin theta. Cos of 90 minus theta is sin theta. Very nice. So let's do the next slide. Sin theta, theta. Yeah, theta is alpha by 2. Okay. यहाँ cos alpha by 2 है, cot 4 alpha है, plus cos alpha by 2 cot of 4 alpha.
ठीक है, sin अल्फा बाय 2 हो गया, cot 4 अल्फा यहाँ पर sec 9 अल्फा बाय 2, sec 9 अल्फा बाय 2, sec of 9 अल्फा upon 2. Is it okay kids? Yes, sir. चलो अब किड्स और थोड़ा काम करते हैं, माइनस अंदर रहेगा बाहर नहीं रहेगा, और थोड़ा काम करते हैं. अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट. कैन आई राइट cot as cos upon sin? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपको. तो आई गेट, इसको मैं आगे रखता हूँ, ठीक है. cos 4 अल्फा cos अल्फा बाई 2, यहाँ पर आएगा माइनस sin 4 अल्फा sin अल्फा बाई 2, एंड ऑफ कोर्स नीचे मेरे पास है वो है sin ऑफ 4 अल्फा. इज इट क्लियर किड्स? Yes, sir. Yes, sir. And of course, I have sec of 9 alpha by 2. Now look. है ना, यहाँ पर मैंने LCM लिया. किड्स सबको समझा ना, 9 4 अल्फा यहाँ पर आ गया, sin 4 अल्फा. इज इट ओके? हाँ, sir. Okay. Now who is this guy? Cos A plus B, cos 4 alpha Cos of A plus plus alpha B, by हाँ. 2. Cos 4 अल्फा प्लस अल्फा बाय, cos of A plus B ना, cos of A plus B का फॉर्मूला है. और ये सम आपका भी ऑलमोस्ट, आपका भी ये सम खत्म होने वाला है मेरे भाई, बिकॉज दिस बिकम्स स्ट्रेट अवे cos of 9 alpha by 2. This is also cos of 9 alpha by 2. Sin of 4 alpha, that becomes cosec 4 alpha, and that becomes your RHS. तो आप ये सम को और एक बार देख लो जिनको देखना है. हमने इसको पहले tan में कन्वर्ट किया था, फिर बाद में माइनस कॉमन निकाला जिससे cos 2 अल्फा हो जाता है, फिर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, cos of माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. उसके बाद cot is cos upon sin, then took an LCM here, cos A cos B minus sin, and sin B is cos of A plus B, and then just simplified it. Is it okay? Yes, sir. Yeah, good. अच्छी बात है. Okay, so we have this value of cos of A, and they are asking me 16 cos square of A by 2 minus 32 times sin A by 2 and sin of 5A by 2. Is it okay? Can I start? Yes, sir. चलो एक छोटू सा काम करते हैं. One छोटू सा काम we will do. Okay kids, can I write 16 as 8 times of 2 cos square of A by 2. Is it okay kids? लिख सकता हूँ ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, यहाँ से I'll take 16 and then I'll write 2 times of sin 5 by 2 sin A by 2. चलो देखते हैं, कोई बताएगा मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? Sin C sin minus sin. 1 plus cos A. क्या? So it will be 1 plus cos A, no? Yes, very good. 1 plus cos 2A का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है सबको? 2 cos square A, the half angle, है ना kids? Yes, sir. So 2 cos square A by 2 can be written as 1 plus of cos A. Is it clear? Yes, sir. Similarly, 2 sin A sin B, किसी को फॉर्मूला याद है? Cos D minus cos C. Cos of A minus B minus cos of A plus B. अरे ट्रिगो फॉर्मूला नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? हाँ कि नहीं? डीफैक्टराइजेशन. हाँ कि नहीं किड्स? 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B. Is it okay? Yes, sir. If you don't remember, it is very bad. Cos of A minus B, जब subtract करेंगे, I'll get 5A by 2 minus A by 2, 4A by 2 becomes 2A. 2 sin A sin B, cos A minus B minus of cos A plus B, add करेंगे तो 3 आ जाएगा, चलेगा? Yes, sir.
ओके गुड. आगे cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि cos का वैल्यू है मेरे पास. I have cos का वैल्यू, तो टेल मी cos 2a in terms of cos. 1 minus 2 cos square a minus 1 minus 2 cos square a. 2 cos square a minus 1. It is 2 cos square of a minus 1. And what is cos 3a का फॉर्मूला? 4 cos cube a minus 3 cos a. Very good. 3 cos a. Very nice. Okay, now kids, I think अभी ज्यादा मेहनत नहीं है. Start putting all the values of cos a. Cos a is 3 by 4. Again, 2 times of cos a is 3 by 4. So 3 by 4 का square, that will be 9 by 16. 3 by 4 का cube. What is 3 by 4 का cube? 27 by 4 का cube is? 4 का cube is what? 64. Is it okay? Yes sir. And cos a is 3 by 4. So now यहाँ पर आएगा 8 times, यहाँ पर आएगा 4 plus 3 7, 7 by 4. Okay, 8 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 by 8 है ना? 9, okay, 9, 1 by 8. This 4 goes with 16, तो यहाँ पर आएगा minus 27 by 16. Minus of, okay, minus minus becomes plus. Plus, मैं कुछ मिस किया क्या मैंने? प्लस 9 by 4. चेक कर लो मैंने कुछ मिस किया हो तो. या यहाँ पर आएगा 8. ओके, 9 minus 8 is 1, 1 by 8. ये minus 27 by 16 प्लस हो गया 9 by 4. ठीक है, आई थिंक परफेक्ट है ये. So this goes with 2. So I get 14 here. That 16 has to go inside. So that becomes 2. 16 goes inside, it gets cancelled, becomes plus 27. 16 goes inside, 4 गया आपका. So 4 9s are 36. So minus 36. So I get 12. यहाँ से आ जाएगा आपको minus 9. Now this becomes minus 9. So यहाँ से आपको मिलेगा plus 3 is your answer. क्या लगता है ऑडियंस, समझा गया? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so that was there. That was it in front of you. You can see. What is given to you is, kids, sin t plus cos of t is equal to 1 by 5 and tan of t by 2 का वैल्यू पूछा है. कोई मुझे बताएगा? आई थिंक ये सम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आ जाए. कैसे करना है किड्स, कोई बताएगा अगर किसी को पता है? सबको tan 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan पता है क्या? tan 2a इन टर्म्स ऑफ tan क्या है? व्हाट इज tan 2 इन टर्म्स ऑफ tan? Upon 1 minus tan square a. 2 tan a upon 1 minus of tan square a. Is that true? Yes sir. So क्यों ना हम यहाँ पर फिर वही कर लेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला. तो यहाँ पर क्या आएगा पता? हाँ, okay. मैं tan 2 की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं भी पागल हूँ, मैं भी tan 2 की बात क्यों कर रहा हूँ? I don't need that. sin 2 and cos 2a, सॉरी मैं बात कर रहा था sin 2 and cos 2a की. sin 2a में यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है. Do you agree kids? Yes, sir. And cos 2a में क्या आता है? 1 minus of Tan square A upon 1 plus tan square. 1 plus of tan square a. Good. तो वेल किड्स वही करते हैं. तो sin t हाफ एंगल क्या होगा पता है? I'll write in terms of t. Okay, so I think t नहीं लिखते, चलो कुछ और लिखता हूँ. I'll write in terms of what? पूरा लिखना नहीं मेरे को. Okay, so assuming writing tan t by 2 as m. Okay, so can I decide 2m upon 1 plus m square? चलेगा kids? Yes, tan t by 2 आएगा ना? tan t by 2. 2 tan t by 2 upon 1 plus tan square t by 2. Is it okay? Is it okay? Yes sir. This will be 1 minus tan square t by 2 upon 1 plus of tan square t by 2. And this 5 has to go there, so it gets multiplied, becomes a 10m
5 minus 5m square equal to 1 plus of m square. Shifting the terms, so I got here 6m का square shift कर दिया मैंने minus 10m. Okay, 6m square minus 10m यहाँ पर आ जाएगा minus 4. Of course, I can divide by 2, so I get 3m square minus 5m minus 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Okay, now kids, can I split a middle term? बताओ क्या लिखूं? -6 + 1. Plus 1, yeah. Very good. So I can take 3m common, so I get m minus 2 plus 1, so I get m minus 2. So kids, I have got from here, your m is equal to 2 or m is equal to minus 1 by 3. तो आपका m tan t by 2 हो जाएगा, tan of t by 2 equal to 2. और यहाँ पर आपको tan of t by 2 हो जाएगा minus 1 by 3. So now you can, both answers are correct, na kids? So you can check which options to be, which is matching. Oh, 2 options are matching, है ना audience? But wait. Let me check. Yeah. But 2 answers are correct. So JEE में कभी भी 2 आंसर सही नहीं होते हैं. Okay? JEE में कभी भी आपके 2 आंसर सही नहीं होते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 answers, huh? This and this both. Both are absolutely correct. Because why they are correct? Because tan का value पता है? What is tan belongs to what, kids? Tan belongs to any real number. Do you agree? Yes, sir. So tan का value can be any negative, it can be any positive. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. So tan का value कुछ भी possible है. Okay? तो kids ये हमारे सामने है. यहाँ पर 2 आंसर सही है, लेकिन JEE में ऐसा कभी नहीं होगा. आपके एक ही आंसर सही होंगे. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, आई थिंक ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैनेज हो जाना चाहिए था लोगों को, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है. थीटा एलिमिनेट करने का बोला है तो कोई भी कर सकता है. देखो a sec थीटा आपको दिया है, तो आप इसको पुट कर दो यहाँ पर. तो अगर आप a sec थीटा यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस ऑफ b tan थीटा a sec थीटा के बदले तो होल स्क्वायर इज 5 प्लस b स्क्वायर ऑफ tan स्क्वायर थीटा. I can open it, so I get minus 2b tan of theta plus b square of tan square theta equal to 5 plus b square of tan square theta. Of course kids, हमारा यहाँ से b square tan square cancel हो जाएगा. Is it okay? Is it okay? Yes. So I can shift the guy 1 minus 5 equal to 2b tan theta. So I got tan theta from here as minus 4 upon 2b. So my tan theta becomes minus 2 by b. Is it okay kids? Yes, sir. अच्छी बात है. चलो tan मिल गया. So kids, अभी tan मिल गया तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर थीटा एलिमिनेट करना है. तो ठीक है, इसको उठा लो अभी और हम थीटा एलिमिनेट कर देंगे. चलो check this out. Kids, can I write sec square theta as, can I write sec square theta as 1 plus tan square theta? Yes, sir. अब ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा. चलो बताओ tan थीटा का वैल्यू क्या है? -2 by b. बस पुट कर दो. -2 by b का स्क्वायर is 5 plus b square minus 2 by b का स्क्वायर. तो a स्क्वायर यहां से आपको मिलेगा b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर इज 5 प्लस b स्क्वायर इंटू यहाँ पर आएगा 4 बाय b स्क्वायर. b स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू दिस इज 9, राइट? सो b स्क्वायर यहाँ पर आएगा 9b स्क्वायर. तो kids, can I say I've eliminated theta? Have I eliminated theta? Yes, sir. This is known as eliminating theta. You have to learn the art of manipulation. पता नहीं क्वेश्चन कैसा पूछ ले वो लोग.
ओके, सो आपको मैनिपुलेशन पता होना चाहिए कैसे किया जाता है. ओके, अब ये तो एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन था. आई वाज जस्ट बिट सरप्राइज्ड, यू नो, व्हेन आई सॉ समबडी आस्किंग दिस डाउट. देन आई वाज वंडरिंग इस बच्चे ने कुछ पढ़ा वड़ा है, किया भी है कि नहीं किया है, क्योंकि इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है और वो बच्चा इसको डाउट पूछ रहा है. कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है ये. इज इट ओके कि मैंने स्प्लिट कर दिया, चलेगा? इज इट ओके? Yes, sir. And I split it cos cube. Now sin by cos will become tan x. 1 upon cos square will become sec square x. It's but obvious 1 cos will disappear from here. So I get cos square. 1 upon cos square will become sec square of x. Is it okay? Yes, sir. Now sec square of x, I can take it common. So it becomes tan of x plus 1. Now sec square x can be written as 1 plus of tan square of x. Do you agree? Yes, sir. Now that 1 should go inside, so यहाँ पर आएगा 1 into tan will be tan x. So, but we already got the answer. Yes, sir. The D option. The D option. Oh, it is matching only. Okay. Good. But let me check. Is there any more answers? Okay, let me check it. The 1 Okay, into sir. tan is tan, so 1 becomes 1. See, I have a habit of, checking everything, because in advance, you have to check everything, no? So I am just checking. Tan cube, this becomes tan square. Is there any more options matching? No, sir. कुछ मैच नहीं हो रहा है ना? कि मैच हो रहा है? अरे हो रहा है ना मैच? So the B option. Even B is matching है ना, audience? Yes, sir. तो यहाँ पर एक्चुअली दो आंसर सही है. There are 2 answers correct. Again, JEE में there's only one option right now, but of course यहाँ पर 2 आंसर सही हो गए. Is it okay? Yes, sir. चलो ठीक है. तो यहाँ पर 2 आंसर सही है आपके. ओके, ठीक है. कुछ तो प्रूव करने को दिया हम लोग को. ओके, सो नाउ पहले काम करता हूं मैं LHS में सब फॉर्मूले लिखूंगा. sin square theta can be written as 1 minus cos of 2 theta upon 2. Do you agree? Yes, sir. Sin square 2 theta can be written as 1 minus of cos 4 theta upon 2. Do you agree? Yes, sir. Sin square 3 theta can be written as 1 minus cos of 6 theta by 2. और ये चलता रहेगा कंटिन्यूसली. तो अब शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा आपको. द लास्ट गाय विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ डबल, दैट इज 2n थीटा अपॉन 2. इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. वेरी गुड. अब ना किस एक मस्त काम करते अपन. मैं हाफ को कॉमन निकाल लेता हूं, तो आप अभी मानोगे यहां पर ये 1 1 1 1 1 कितनी बार होगा आपके हिसाब से, बता दो. n टाइम्स होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, मैंने नीचे का हाफ बाहर निकाल लिया, 2 को बाहर निकाल लिया. माइनस यहां पर है cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा, और ये चलता रहता है किड्स. और लास्ट में मेरे पास है cos ऑफ 2n थीटा. आई होप ये सही है किड्स. Yes, sir. चलो अच्छी बात. पता है क्या है किड्स? What is 1 plus 1 plus 1 n times? N. Yes. 1 plus 1 plus 1 is n times is n only, है ना? Because 1 plus 1 is 2. 3 times 1 is 3. 4 times 1 is 4. 5 times 1 is 5. 6 times 1 is 6. So n times 1 is n. Is it okay? Yes, sir. Now look at this guy. Interesting. I have taught a very important concept towards the end of Trigo chapter. One formula I had given, one result I had given. That result was, if your angles are in AP, if your angles are in
AP. If your angles are in AP and it's a sum of the causes, is the angles in AP? Yes, sir. What's the common difference? 2 theta. अरे इसके बीच की बात कर रहा हूं मैं, वो रिजल्ट पे। यहां पर डिफरेंस क्या है एंगल्स में? बीटा। अरे बीटा का डिफरेंस है ना? Yes, sir. तो इसका फॉर्मूला किसी को याद है? इसका फॉर्मूला ये दिया था मैंने, किसी को याद है? मतलब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है और ऐसे ही बैठे हैं डाउट सॉल्विंग में। ओके, ये होता है कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो अगर ये याद है तो याद कर लो बाबा। Sine of n, number of terms n, beta is the common difference by 2 upon sine beta by 2, beta is the common difference by 2 into cos of first term plus last term upon 2। अब मैं करने वाला हूं आपके सामने, देख लो। तो क्या आएगा? साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आपका n ही है, हाँ कि नहीं? n है ना नंबर ऑफ टर्म्स? Yes, sir. ओके, बीटा कॉमन डिफरेंस क्या बताओ? चलो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 2 theta upon 2. Is it okay? Upon sine of common difference upon 2. चलेगा audience? Yes, sir. Cos of first term plus last term. First term plus last term upon 2. Is it clear? Audience? Yes, sir. पिक्चर खत्म हो जाएगा अभी, देखना। 2 गया तो फाइनली आई गेट माई आंसर एज, ओके हाँ, ओके हाफ लिख लेता हूं मैं, ठीक है चलेगा। हाफ ऑफ n माइनस ये मिलेगा आपको साइन ऑफ n थीटा इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा कॉमन आ जाए तो यहाँ पर आएगा साइन ऑफ थीटा कॉमन लेंगे तो n+1 आएगा, यहाँ पर आएगा n+1 थीटा। सॉरी साइन नहीं, कॉस। सॉरी मिस्टेक या कॉस आएगा, सॉरी कॉस। 2 विल कम कॉमन, कैंसिल थीटा कॉमन, सो n+1 नीचे आई गेट यहाँ साइन थीटा बचा, साइन थीटा, and then you can take 2 inside and this matches with your answer. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. ओके देखो क्या मस्त एप्लीकेशन इस रिजल्ट का। ये मैंने टुवर्ड्स द एंड आपको बताया था, ट्रिगो के टुवर्ड्स द एंड, लास्ट लेक्चर में बताया होगा मैंने। ओके तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जहां पर हमने बहुत सारे फॉर्मुलेज यूज किए और फिर बाद में कॉस के जो एंगल्स अगर एपी में होते हैं यहाँ पर कॉस अगर साइन होता ना तो यहाँ पर साइन आ जाता, ये सब साइन ही होता और यहाँ पर साइन आ जाता। इज इट ओके किड्स? Yes. Okay, so good. Now, similar problem based on sine. Let's see. Phi is the exterior angle of a regular polygon of n sides, and theta is a constant number. Polygon, I think आपको सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, angle and its measurement. और आपको पता है ये जो बाहर की तरफ जो निकलता है ना, ये जो पूरा आपका जो बाहर की तरफ निकलता है, ओके, ये जो आपका जो बाहर की तरफ है इसे कहा जा, these angles are known as what kids? Exterior angles. Okay, and kids, what is sum of all the exterior angles? 360. Yeah, sum of all exterior angles. It is 360. Yeah, 360 मतलब 2 pi होता है। और उन्होंने बोला है phi is the exterior angle. That phi is one exterior angle. So can I say therefore each exterior angle will be how much?
Cancel 2 with 2 pi pi upon n. upon the number of sides. Is it okay? हाँ कि नहीं kids? Yes, sir. Yes, sir. It means this phi is the external angle. मतलब phi is given as, phi is nothing but 2 pi upon n. Is it clear? Yes, sir. अब क्या पूछा है उन्होंने? कुछ तो पूछा है अभी, ये बहुत इजी है, देखना अभी आपको अच्छा लगेगा. Sin theta plus sin of theta plus phi, sin of theta plus 2 phi, और ये चलता रहेगा. तो आपको जो आखिरी जो टर्म मिलेगा ना किड्स, देखो यहां से, यहां कुछ नहीं था, यहां पर फाइव है, यहां पर 2 5 है, तो जो आपका जो nth टर्म होगा ना, यहां पर आएगा थीटा प्लस n-1 फाइव. डू यू एग्री? क्योंकि देखो क्या होता है कि जहां पर n टर्म्स है ना, तो आप खुद ही सोचो ना, देखो यहाँ ये 1 5 है, ये 2 5 है, ये तो ये n-1 5 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक n-1 टर्म्स हो गया, और एक टर्म ऐड करेंगे तो n टर्म्स हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना? देखो ये 1 5 है, ये 2 5 है, 3 5 4 5 5 5, n-1 5. So from here till here, from here, this is n-1 terms. Is it clear? और ये एक ऐड किया तो n टर्म्स हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Now again, kids, can I say again use the same result of our which I was speaking about? What is is the angles in AP? Yes, sir. Of course, the common difference is phi, right? So I can say what? I can say sine of number of terms common difference is phi upon 2 upon sine of common difference by 2 into sine of first term plus last term upon 2. Is it clear? Yes, sir. What is phi? What is phi given to us? Phi is what? 2 pi by n. Do you agree, audience? Yes, sir. So phi is 2 pi by n upon n. 2 pi by n upon n. Yeah, okay. Sine of this is ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा थीटा प्लस n-1. आपका phi क्या है? 2 pi by n. Is it clear? चलेगा? phi के बदले 2 pi by n लिख दिया मैंने. Yes, sir. ओके तो ओके यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. इज इट ओके? Yes, sir. ओके अब आगे बढ़ जाते हैं. किड्स n gets cancelled, 2 gets cancelled. अरे वाओ, what I got from here now, from here this term, what is this? Sin pi. Sin pi ना kids? Yes, sir. What is sin pi का वैल्यू? अरे टेल मी. 0. 0. Sin pi है बाबा, sin pi 0 होता है, तो who cares about the other guys? 0 into anything will always be 0. Is it okay? Yes, sir. Sin pi का वैल्यू 0 होता है, तो 0 into anything will be 0 only, तो काम खत्म हो गया. So you got the answer as 0. I hope it's clear, kids. Yes, sir. Good. आगे बढ़ते हैं फिर. ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ये डाउट बहुत अच्छा था. Again, I prove that question. I'm just taking the LHS. Sin square x plus sin square of y minus of sin square of z. You know what, kids? The moment I see this ना, तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है. बोलो क्या फॉर्मूला आता है मेरे दिमाग में? कोई बताएगा क्या आता है फॉर्मूला दिमाग में मेरे? कोई रिजल्ट दिया था क्या मैंने? किसी को याद है क्या?
नहीं याद है? Not good. I know you have a test on Saturday, but that does not mean that you don't know these terms. देखो यही प्रॉब्लम है, यही तो फर्क होता है जो बच्चे ऑल इंडिया रैंकर बनते हैं, जिनको 99 परसेंटाइल आता है और जिनको नहीं आता है। वो ब्लेम किसको भी कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो 99 परसेंटाइल बच्चे होते हैं ना, 99 परसेंटाइलर्स, वो बच्चे ऐसे होते, बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं। वो रेगुलरली सेल्फ नोट्स बनाते हैं, हर हफ्ते रिवाइज करते हैं, हर महीने रिवाइज करते हैं, जिससे वो कोई चीज भूलते ही नहीं। तो मैंने आपको भी सिखा दिया सेल्फ नोट्स के बारे में, तो बनाने की आदत डालो, हैव अ हैबिट। दिवाली वेकेशन आएगा, सारे सेल्फ नोट्स बनाओ, सारे चैप्टर रिवाइज कर लो, जिससे क्या होगा कि हर बार रेगुलरली आप रिवाइज करोगे, हर हफ्ते हर महीने, तो आपको फिर मैं जब भी कुछ भी पूछूंगा तो आपको आएगा। और वही तो की है सक्सेस का, ये याद रखना आप लोग। इट नॉट दैट you remember the things only before one day before the examination. So if you're of that category of student who remember things one day before the examination, trust me, you are not gonna get good percentile in JEE. Trust me, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूं। मैं जो बच्चे हमेशा याद रखते हैं ना, कभी भी कुछ पूछा है, वही बच्चे क्रैक करते हैं। अब आप बोलो सर मेरे को इतना याद नहीं होता है, अरे इवन इफ एन एवरेज किड इज देयर, इफ ही सिस्टमैटिक ही कैन रिमेंबर। इसलिए तो सेल्फ नोट्स मैंने बोला है बनाने के लिए, हर चैप्टर के लिए बनाने का, और रेगुलरली बनाते रहने का, जो चीजें हर रोज सीखते हो। ओके चलो, ये सिर्फ आपका 11th-12th की बात नहीं है, लाइफ के बारे में बता रहा हूं मैं। आप लाइफ में जिससे भी मिलते हो, जो भी आपको लेसन्स मिलती है, किसने आपको बुरा किया, आपके साथ भला किया, वो भी अगर आप नोट डाउन करना सीख जाओगे ना लाइफ में, आप कभी भी लाइफ में अपसेट नहीं होगे, और आपको कोई भी आपको चीट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप वो करते बैठे, आपको पता है कि ऐसे जब होता है तो लोग ऐसे करते हैं मेरे साथ, वो सारी चीजें आप रेगुलरली लाइफ को आप बोलते हैं रिकैप करते रहोगे। आदत डाल के रखो ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें। कोई किसी चीज ने, किसी इंसान को अच्छी चीज की आपके साथ, नोट डाउन करो। अभी मत करना, मैं खाली बता रहा हूं मैं। इवन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, इवन इफ यू स्टार्ट वर्किंग, यू गेट मैरिड, व्हाटएवर, हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। अच्छा लगेगा। चलो ठीक है। सो किड्स, व्हाट आई कैन राइट हियर नाउ, टेल मी। चलो, अरे अभी तो बताओ फॉर्मूले sin सामने। a plus b sin a minus साइन ऑफ y plus z into साइन ऑफ y minus z. Is it okay, kids? yes sir Very nice. चलो चलो चलो, ठीक है। इसका काम अपन बाद में करते हैं, पहले हम इसका काम करते हैं तमाम। किड्स, what will be y minus z? y minus z क्या हो जाएगा? Can I say Pi y minus minus z x. will be pi minus x? Do you agree? अरे do you agree? अरे हाँ के नहीं? sir Okay, good. तो ठीक है। So this becomes sine square of x, sine of y plus z. What is sine of pi minus theta? Sin sin theta Okay, good. तो यहां से आपको मिलेगा sine of x, है ना? Sin pi minus theta is sin theta. Of course, I can take sin x common. So I get sine of x plus sine of y plus z. Is it okay, kids? Is it okay? yes sir Think of sin c plus sin d. What is sin c plus sin d का formula? Sin c plus sin d. 2 sin cos. 2 sin c plus d. C plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. Is it okay, kids? Is it okay? अरे हाँ के नहीं? yes Yes. ओके चलो, अच्छी बात है। अब और बातें करते हैं। किड्स, look at x plus y. What will be x plus y? pi Pi plus plus z. Pi plus z. And what will be x minus z? What will be x minus z from here?
pi minus, tell me Pi. pi minus y. तो x minus z will be pi minus y. ये भी आपका यहां से माइनस y आ गया. अगेन मैं बता देता हूं वापस से, कुछ बच्चों को टाइम लगता है समझने को. x minus z, x minus z will be pi minus y. तो मैंने इन दोनों को मिला के मैंने pi minus y लिखा है. समझा क्या सबको? ओके, फ्रॉम 1. अब मजा आएगा, हम लोग ऑलमोस्ट रीच कर रहे हैं एंड में. 2 sin, दिस इज पाई अपॉन 2 में स्प्लिट कर रहा हूं. 2z by 2 will be z only. Again cos, ये आपका pi by 2 है. 2y by 2 will be y. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Good. What is sin 90 plus theta? Cos theta. Cos theta. What is cos 90 minus theta? Sin theta. Sin theta. So is the problem done? Twice sin x, sin y, cos z. Did you understand? Yes, sir. Beautiful. मस्त प्रॉब्लम है ना किड्स. क्या मैनिपुलेशन, क्या क्या नहीं करना पड़ता है टू गेट द आंसर. और प्रॉब्लम पता है कि एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, लोग फंस जाते हैं. तो मेरा मानना ये है कि जब भी आपको लग रहा है मैनिपुलेशन में आप फंस सकते हो, तो आपको इनिशियली उसको हाथ नहीं लगाना है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड. या ओके, ऐसे सम्स मैं एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों से, उनको आने चाहिए. फिर भी डाउट पूछा तो मैं बता ही देता हूं. किसी को पता है कि मैं क्या करने वाला हूं यहां पर? हाँ, ऑफ कोर्स आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है, पर एक फॉर्मूला मैंने दिया था. sin a minus a sin a sin 60 minus a into sin of 60 plus a is 1 by 4 sin of 3 times a. है ना kids? yes sir Is it true kids? Yes, sir. Okay, तो हम यहाँ देखते हैं, इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. अगर इसको a बोलते हैं तो 12 है ये. 60 माइनस a मतलब 60 माइनस 12. 60 माइनस 12 48 है. वाओ. तो 60 प्लस 12, 60 प्लस 12 72 होना चाहिए. तो यहाँ 72 मिसिंग है. मैं 12 को a अज्यूम कर रहा हूँ. तो जब 60 माइनस a करेंगे तो 48 आएगा, और 60 प्लस a करेंगे तो 72 आना चाहिए. तो क्यों ना एक काम करते हैं, क्या करने वाला किड्स? I'll multiply and divide by what kids? Sin of 972. 772. Is it clear? चलेगा? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now this is sin A. Okay, यहाँ पर मेरा इस प्रॉब्लम में मेरा A क्या हो गया? 12 डिग्री. चलेगा? तो sin A sin 60 minus A and sin 60 plus A, the formula will be 1 by 4 times of sine of 3 times of A. Do you agree? Yes, sir. So I'm getting say sine of 36 degree, the sine of 54 degree, and I think everybody will agree sine 72 can be written as cos of 18 degree. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next, recollect one more formula which I think everybody knows. Sine 2a is 2 sine a cos a. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. So can I apply that formula here? Half angle formula. तो sin 36 को मैं क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? Sin 18 degree. 2 sin 18 degree cos of 18 degree. Is that okay? Yes, sir.
चलो ठीक है, 2 sin 18 डिग्री cos of 18 डिग्री। ऑफ कोर्स cos 18 आपका यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो हमें आखिर में जो मिल रहा है वो है 1/2 लिखूंगा मैं। तो आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड, आई राइट 1/2 sin 18 sin 54। you know 54 डिग्री। चलो, डू वी नो sin 18 का वैल्यू? Yes, sir. √5 - 1/4 है ना किड्स? हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. sin 54 is same as cos 36, हाँ? और दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, एंड cos 36 का वैल्यू भी वही होता है, वो है √5 + 1/4। इज इट ओके? तो ये 1/2 है, यहाँ पर आएगा a - b + b बिकम 5 - 1 बिकम्स 4, नीचे है 4 × 4, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 1/8। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। ओके, तो आप चेक कर लो, ये बहुत ही मस्त प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ अगर किसी ने रिजल्ट किया है तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा मैनिपुलेट करके कर सकता था। ओके, चलो अच्छी बात है। सी, प्रैक्टिस से ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हाथ पैर साफ करोगे तो आई थिंक हो जाएगा फिर। cos of 0, ओके, नाउ दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बच्चों को ये वाला सम आ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सम इजी है। cos of 4π/7 plus cos of 5π/7 plus cos of 6π/7। किड्स इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना और इस पे ध्यान देना। क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला? पाई माइनस वेरी नाइस। सी, cos 0 का वैल्यू तो सबको पता ही है, तो cos 0 तो 1 ही होता है, so that's not a problem only. I think you all will agree with me that this guy that you see can be written as cos of pi minus 3π/7. Do you agree? यस सर। Similarly, this guy can be written as cos of pi minus 2π/7, and this guy can be written as cos of pi minus π/7. Is that true? Yes, sir. What is cos pi minus theta? Minus cos. Minus Yeah, cos. so this will become what? Minus Minus. of cos 3π/7. This is minus of cos 2π/7. This is minus of cos pi/7. Okay, so you can just check it out. All the terms are getting cancelled. तो फाइनली आपको जो आंसर मिल रहा है वो है cos of 0. And what is cos 0 का वैल्यू? 1. Is it clear? Yes, sir. Good. चलो अच्छी बात है। Okay. So I have here cos square of x plus cos square of y plus cos square of z minus 2 cos x cos y and cos of z। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम झोल झाल करते हैं। लेट्स डू सम लिटिल बिट ऑफ झोल झाल हियर एंड देयर, एंड मे बी देन समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग विल हैपन। एक छोटू सा मैं काम करता हूं। अब ना एक काम करते हैं किड्स, can you tell me, in fact, what will be 2 cos x cos y? 2 cos x cos y, कोई मुझे बताएगा फॉर्मूला कोई? 2 cos x cos y, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a cos b, Sin of a plus b minus sin of a minus b. नहीं नहीं नहीं, sin cos plus cos cos आएगा ना, 2 cos a cos b
is cos of a plus b cos of a plus b, okay, plus cos of a minus b. Actually ये हमारा फॉर्मूला है. Is it okay, kids? Yes, sir. तो ठीक है, तो I'll write 2 cos x cos y as cos of x plus y plus cos of x minus y. ठीक है, एंड फिलहाल मेरे पास यहाँ पर है cos of z. Is it okay, kids? चलेगा? चलेगा मेरे भाई? Yes, sir. चलो, अच्छी बात. अब बोले सर आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा क्यों लिखा मैंने? X plus y is equal to 7. X plus y is z, right? I can write this as your x plus y will become z. Get cos square of x plus cos square of y plus cos square of z. ये अंदर जाएगा become minus of cos square of z minus plus minus cos of x minus y into cos of z. That is but obvious. This term will get cancelled. Do you agree, kids? Do you agree? Yes, sir. Yes. Okay. And this is minus of cos of x minus y. This is z. Can I, in place of z, can I write x plus y? Can I? Yes. X plus y. And once I reach here, I have a formula. I have a formula. I have a formula. I have a formula. I have a formula which I had used it right now. So just few numericals before. Anybody remembers? कि भूल गया वापस से. Cos a plus b into cos a minus b क्या है? Cos square Cos a square minus A, sir. cos b. Sin square b. Perfect. Cos square a minus sin square b. मेरे भाई sum is done. Picture खत्म. Cos square x plus cos square of y. ये हो गया cos square x minus sin square of y. Is it okay? चलेगा ना kids? Yes. Minus cos square of x plus sin square of y. Now cos square cancel हो गया. What is cos square theta plus sin square theta? 1. 1. और ये हमारा आंसर हो जाता है. Is it okay? Understood everybody? आप खुद ही देखो कितने सारे मैनिपुलेशन. अब ये अब बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स ना x प्लस वाई जेड गिवन, तो दिमाग में तो मेरे दिमाग में यही आने वाला है. z पुट के अंदर गया तो कैंसिल हो जाता है. फिर z को x प्लस वाई बोला बिकॉज आई न्यू आई हैव अ फॉर्मूला विथ मी एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम इज डन. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Good. Okay. This was also as per the standards are easy problem because I had given a note to your people to directly remember. If a plus b plus c is equal to n pi or pi suppose, then tan a then tan a plus tan b plus tan c equal to tan a tan b tan c. ये रिजल्ट मैंने आपको दिया था, तो अब ध्यान से देखो. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 pi है ना किड्स? Yes. If I divide by 2, I get alpha by 2, beta by 2, gamma by 2 equal to pi. Is it okay?
Is it okay? Yes, sir. Now, if a plus b plus c is pi, if a plus b plus c is pi, then automatically, can I use this result now directly, kids? Yes. So straight away it will be tan of alpha by 2 plus tan of beta by 2 plus tan of gamma by 2 is tan alpha by 2, tan beta by 2 and tan of gamma by 2. And you can check the option is answer A. Is it okay? Yes, sir. Good, good, good. ओके तो ये आपका JMN लेवल एक्सरसाइज से ये सारे डाउट्स थे आपके, और आई थिंक प्रीवियस ईयर से 2-3 क्वेश्चन डाउट्स थे, वो भी कर लेता हूं मैं. ठीक, चलो. अब ये एकदम जोरदार प्रॉब्लम आया था 2019 में. आई एम प्रीटी श्योर काफी बच्चे नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज ये एक्चुअली डिफिकल्ट कैटेगरी था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या इस सब में. तो मैं बिफोर आई गो इट मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूं जो सबको पता है फिर भी नहीं पता है. पता है लेकिन यूज करने को शायद नहीं आता है. डू वी रिमेंबर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन? डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया है दैट सम ऑफ द टू टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी. चलेगा? हाँ कि नहीं किड्स? Yes, sir. Yes, sir. If there are three terms, I can write this as a plus b plus c by 3 will be greater than or equal to cube root of abc. आपको ये भी पता होना चाहिए अगर 3 टर्म्स है तो. अगर 4 टर्म है, अगर 4 टर्म है, इक्वल टू क्या आएगा वहां पर? क्या लगता है क्या आएगा? 4th root of abcd. Is it okay? Yes, sir. And one more thing, remember, okay, मैं रिमार्क लिख के देता हूं. The equality holds if A equal to B equal to C equal to D. I mean to say, equal कब होगा? when A and B are equal और ABC are equal or all the guys are equal. Is it okay, kids? Yes, sir. ओके अब यही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है मेरे भाई. मैं बताता हूं. लुक एट दिस गाय. आप एकदम शॉक हो जाओगे. प्रॉब्लम इस पर बेस्ड था. देखो, सो आई नो. ओके, ना सॉल्यूशन में अभी यहां लिख रहा हूं तो ध्यान से सुनना, ठीक है? ऑफ कोर्स वी नो दिस गाय, एवरीबॉडी नोज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन. तो मैं यही यूज करने वाला हूं. So the 4 term, let's take this is the first term. This is the first term. This is your second term. यहाँ 2 है ना किस? I can add 2 as 1 and 1. तो 2 को मैंने यहाँ पर थोड़ा 4 टर्म हो गया. 1 2 3 4 upon 4 is greater than equal to under root of, can I 4th root of, sorry 4th root. कैसे? और सबका multiplication 4 alpha 4 cos square beta into 1 and into 1. Is it okay, kids? Or it's 4 raised to क्या हुआ? 4 cos 4 raised to 4 b. Yeah. Sorry. My mistake. चलो ठीक है. अब एक काम करते हैं. साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस 4 कॉस रेज बीटा प्लस 2 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट है ना, क्योंकि 4th रूट है तो यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा. डू यू एग्री? 4th रूट है, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes. व्हाट इज 4 का 4th रूट? रूट 2. Root 2. देखो 4 का रूट इज 2 और 2 का वापस रूट लेंगे तो आपको 4, हाँ ना, 4 का 4th रूट. Yes, समझ रहे sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. रूट 2 आएगा, रूट 2. इज इट ओके?
Yes, Yes. sir. गुड, √2। इसका भी आएगा cos बीटा, ये 1 का तो 1 ही आने वाला है, तो आई गेट दिस। तो आई एम लेफ्ट हियर विथ दिस गाय प्लस 4 cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 √2 sin अल्फा cos बीटा। इज दैट ओके? Yes, sir. Is it matching now? Something similar? Yes, sir. Okay. Now see again somebody can ask me this question ना, अरे सर हमें कैसे पता चलेगा ये सब करना था? मेरे भाई मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पर फोर्थ रूट है, 4 है, यहाँ पर फोर्थ रूट है, मतलब उसका फोर्थ रूट है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा अरे 2 को 1 and 1 लिखते थे, फोर्थ रूट लेंगे तो AMGM करेंगे तो शायद ऐसा कुछ मिलेगा। और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, जबकि यहाँ पर इक्वल टू है। हाँ क्या नहीं किड्स? Yes, sir. तो इक्वालिटी होल्ड कब होगा? When all the terms are equal, है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? All the terms मतलब Yes, sir. क्या? All the terms का मतलब होता है, ये 2 एक्चुअली क्या था आपका? 1 and 1 है ना kids? अरे हाँ क्या नहीं? Equality Yes. holds when all individual guy, that is A equal to B. A 4 है ना? Sorry. My mistake. Sorry. Is it okay, kids? मेरा mistake. Yeah. All are equal to 1. Is it okay, kids? All are equal. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. मतलब मुझे क्या पता चला यहाँ से? Sin raised to 4 अल्फा का वैल्यू इज 1। और क्या पता चला? 4 cos raised to बीटा, 4 cos raised to 4 बीटा का वैल्यू भी 1 है। Is it clear? Is it clear? है ना? सब 1 ही होगा ना किड्स? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Okay. So now from here I am getting sin alpha will be 1, cos is to 4 बीटा, मैं इसको 1/4 लिख रहा हूं। तो cos स्क्वायर बीटा अगर मैंने लिखा तो ये 1/2 रूट लिया मैंने, तो आपका cos बीटा हो जाएगा 1/√2 और sin अल्फा मुझे मिला है 1। आप खुद देख लो यहां पर उन्होंने बोले अल्फा बीटा किसको बिलोंग करता है? 0 to pi, है ना किड्स? अरे हाँ के नहीं? Yes. सो मुझे यहां से क्या मिला? देखो अभी कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो साइन स्क्वायर लेंगे, साइन स्क्वायर तो चलो 1 लिखा। देखो आप यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर अल्फा विल बी +-1, तो माइनस को डिस्कार्ड करके आपको साइन स्क्वायर अल्फा +1 ही लेना पड़ेगा, है ना किड्स? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इज दैट ट्रू? Yes, sir. तो आपको क्या एक्चुअली अगर टेक्निकली आप देखोगे ना तो पता है यहां से क्या मिलने वाला है आपको? आप साइन स्क्वायर को 1 कर देना, फिर आपको जो टेक्निकली जो साइन का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा +-1, है ना किड्स? हाँ कि नहीं? Yes, sir. अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. So, ओके, सिमिलरली ओके और भी देख लो वहां पर। ओके, और आपको ओके बीटा ओके, आपका एक cos स्क्वायर बीटा हो गया, तो आपको जो cos बीटा हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा +-1/√2। इज इट ओके? Is it okay? But since alpha beta belongs to what? Tell me. 0 to pi. हाँ, तो आपका जो अल्फा बीटा है ना कि वो 0 to pi के बीच में है, तो can I say it is which quadrant? First and second. Is that true? Is that true? Yes, sir. Okay, तो यहां से आपका -1 हट जाएगा। -1 क्यों हट जाएगा? क्योंकि साइन -1 270 में होता है, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो यहां से आई कैन स्ट्रेट अवे राइट मेरा साइन अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा अल्फा का वैल्यू π/2 हो जाएगा 90 डिग्री। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, Okay. sir. यहाँ पर cos बीटा +1/√2 भी हो सकता है, -1/√2 भी। मुझे यहाँ से बीटा का एक्चुअली 2 वैल्यू मिलेगा, एक होगा 45 डिग्री और एक होगा 135 डिग्री। व्हाट यू से? डू यू एग्री? क्योंकि cos यहाँ पर नेगेटिव होता है ना किड्स? अरे समझ रहा है क्या? cos 1/√2 and this will be -1/√2. डू यू एग्री? yes, sir. तो यहां से बीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, बट आई थिंक इट्स ओके, आप कोई भी एक वैल्यू लोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो लेट मी टेक बीटा, cos बीटा इज 1 पॉजिटिव ओनली,
So I got beta as 45 degree. Is it clear? दोनों वैल्यू पॉसिबल है. बीटा कैन बी ऑफ कोर्स, बीटा कैन बी व्हाट, योर बीटा कैन बी 45 degree also, और ये बीटा कैन बी 135 degree also. Is it clear kids? Yes, sir. तो कोई भी दो वैल्यू लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या था? cos of alpha plus beta minus cos of alpha minus beta. ठीक है, तो लेट मी राइट समवेयर हियर. cos of alpha plus beta minus cos of alpha minus beta. Okay, चलो. cos of alpha plus beta 90 plus this. So cos of alpha plus beta 90 plus 45 will be 135 degree. Is it okay? हाँ कि नहीं kids? And 90 minus 45 will be 45 degree. चलेगा audience? Is it okay? Yes, Yes. sir. What is cos 135 degree? अभी तो पता था क्या है? -1 by root 2. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. And cos 45 is 1 by root 2. So I got -2 by root 2. And -2 by root 2 will be minus of root 2. And let's check the option. Where do we have? Yeah, we have minus root 2 as the answer. तो आप देख लो, इतना मस्त प्रॉब्लम पूछा था. रिमेंबर जेई में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन. लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का ही क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पर पहले तो आपको क्वेश्चन देख के समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा है यहाँ पर. तो आपको वो क्लिक होना चाहिए कि AMGM वाला सम है. पहली बात तो ये है. इक्वलिटी होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन दिया, तो इक्वल किया, तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट अवे यहाँ से मुझे साइन अल्फा का वैल्यू +-1 मिल रहा है. लेकिन आपका अल्फा 0 और पाई के बीच में है, तो आपका साइन तो पॉजिटिव ही होगा ऑफ कोर्स, तो 1 ही लेना पड़ेगा. यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू +- दोनों आ सकता है, तो वो बीटा का वैल्यू है. कोई भी बीटा लेंगे तो आंसर आने ही वाला है. तो लेट्स मेक अ लाइफ सिंपल. टेक बीटा एज 45 डिग्री and then put the value to get the answer. Is it clear for all? Yes. Good. Okay, ये भी क्वेश्चन 2019 का ही है. कि दिस इज f of k. ओके, f k तो 1 by k, एंड ये रिलेशन देके रखा है. तो अगर 4 बोला है तो यहाँ पर आएगा 1 by 4 टाइम्स ऑफ sin raised to 4x plus cos raised to 4x. तो ये 6 होगा 1 by 6 टाइम्स ऑफ sin raised to 6x plus cos raised to 6x. Let's go ahead. Do we know the direct formula of this? एक शॉर्टकट है इसका, मैंने दिया था, रिजल्ट है 1 Sin- minus sin 1 square minus theta 2 cos square. sin square x cos square x. Is that true kids? Yes, sir. This is 1 minus 3 sin square x cos square x. 1 minus 3 है इसमें. अब बस 1 by 4 अंदर जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 by 2 टाइम्स ऑफ sin square x cos square x minus 1 by 6, यहाँ पर आएगा प्लस अगेन 1 by 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये आ जाएगा. अब बस अभी आपका काम यहाँ से खत्म हो गया. आपको मिलेगा 1 by 4 minus 1 by 6, तो 6 minus 4 upon 24, आपको मिलेगा 2 by 24, तो हमें आंसर मिलेगा 1 upon 12. Is it clear? Is it clear kids? Yes, sir. Sir. चलो अच्छी बात है. ओके, और ये भी सॉरी अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी कहाँ गया यार. ओके, तो किस ये आपका लास्ट समय है, ये भी कर लेते हैं. 3 times of sin theta minus cos theta raised to 4 plus 6 times of sin theta plus cos theta का square plus 4 times of sin raised to 6 theta. Is it okay kids? Can I start? Yes, sir. ये भी देखो 2019 का ही प्रॉब्लम है. ओके, तो हम इसको एक काम करेंगे, s minus c the whole square करके पूरा स्क्वायर कर देंगे.
ओके और फिर सबको साथ में सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो ओके, साइन स्क्वायर थीटा, ओके a square plus b square sin square cos square will become 1 minus 2 sin theta cos theta. Is it okay, kids? Yes, Is it sir. okay? Yeah. Again, sin square theta plus cos square theta will become 1 plus 2 sin theta cos theta. So obvious. Now let me open it. 1 minus 4 sin theta cos theta plus 4 sin square theta cos square theta प्लस 6 टाइम्स ऑफ ये आपका, ठीक है। अब हम ना उसको अंदर लेके जाएंगे तो बहुत सारे कैंसिलेशंस होने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। टेक 3 इनसाइड, 3 minus 12 sin theta cos theta, 12 sin square theta cos square theta, 6 plus 12 sin theta cos theta plus sin raised to 6 theta. ठीक है ना किड्स? 3 plus 6 will become 9 plus 12 sin square theta cos square theta plus 4 times of sin raised to 6 theta. Okay, so now I think we can just wrap it up. Okay, कुछ बड़ी बात नहीं है इसको भी करना. You can check options. कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या यहाँ से? नहीं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये भी 2 sin square cos square नहीं, ये भी नहीं मैच हो रहा है। तो और एक काम करते, सबको कॉस में कन्वर्ट करते तो पता चलेगा क्या आंसर है। चलो, साइन स्क्वायर इज 1 minus cos square again, this is sin square, तो I can say 1 minus cos square का क्यूब। इज इट ओके किड्स? चलेगा, साइन स्क्वायर का क्यूब चलेगा, साइन स्क्वायर का क्यूब किया, इज इट ओके? Yes, sir. 9 प्लस ये अंदर ले लेंगे, 12 c square minus 12 c raised to 4 plus 4 times of, I can apply a minus b the whole cube का formula kids, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b का cube. Did you understand the formula? Yes. Yes, sir. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. अब देखो सारे टर्म्स एक्चुअली कैंसिल होने वाले हैं और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, अभी देखना। प्लस 4 minus 12c square plus 12c raised to 4 minus 4c raised to 6. Of course, let me cancel all the terms. तो लास्ट में हमें जो आंसर मिला वो है 9 plus 4, that is 13 minus 4 cos 6 theta. Is the answer matching? Yes, Yes. sir. That's it. Yes, sir. समझा ना सबको? Yes, sir. ओके, सो किड्स एक मिनट, ये खत्म हो गया हमारा।